in the second match of the day here in the Combox of ANN News of Fistful and Productions. We are back live in action here from the synthetic turf TRC Srinagar, and the matches between the two teams, they have already locked up their horns. One of the professional club of the Jammu and Kashmir, JK Bank, is taking on Iqbal Sports, and this is one more contest of the event. I guess this is going to be the 32nd match of this Khyber Premier Football League 2021, which is being organized by Jammu and Kashmir Football Association in collaboration with JK Sports Council 2021. Here we are in the Combox, and we have received our guest. We warmly welcome him, international player Mr. Ranjit sir. He is doing job in the Department of Jammu and Kashmir Police as inspector. So Ranjit sir, first of all, I would like to welcome you in the Combox. Thank you, sir. Thank you so much. So we'll be chatting with him. We'll be having a discussion with him regarding football, regarding JK Bank police team, police team rather, because he has been highly indulged with that team. So तो आपसे जानना चाहेंगे कि JK पुलिस की टीम जो है, they are at the top of the level. We'll be discussing with you, but before that we'll be going into the game, and his number 30 has pushed the ball, in fact gently, towards the one more player that was way away, and ball is just passing the bylines. In fact the touch line is going to be a throw in. Number 3 comes in a charge from the team of Iqbal Sports. He is taking it further, number 3, and that I think blue one is JK Bank team is man in blue and Iqbal Sports are man in white. Yeah, there we go. It's number 16 who almost stops that ball, but he could not control the ball. Sends ball back to the defender. Defender takes it further to the number 11 who was in the circle. Is there? He has sent ball back to. It was almost a layup passing there. Superbly done work, and straight away sent to the left out before he could have gone into the penalty box. It was the assistant referee who has shown the signals to the central referee that the first offside of the match has been declared. Iqbal Sports versus JK Bank 11. So this is going to be one more encounter of this Khyber Premier Football League 2021, and there is the first kick that will be coming from the team of Iqbal Sports. There we go, man in white. The defender comes, he's ready, charging up, sends the ball beyond the midline. It's just in front of the another player. He takes a header. Not a good regulation from the players. Meanwhile, it comes one more player from the JK Bank's player. He sends straight to one more player. That was well blocked there. Beautifully done. Good passing. It's a wonderful back-to-back passing by the JK Bank team, and that's what they are known for, and they have to do. Here comes the goalkeeper without wasting any time. He kicks the ball. It's up in the air for a while. We're waiting for the match referee's decision. I think it's beyond the bounds. There may be throw in that will come directly in favor of now JK Bank team. JK Bank is really one of the strong teams of the valley, in fact of the Jammu and Kashmir, to be very honest. And Iqbal Sports, they too played have some good football, good soccer in this event. Meanwhile, it's throw in favor of JK Bank Academy. One of the player comes, he sends the ball, but that has been well blocked away. It is almost chipping it up. Hopefully kick was in there for a while. Simulation comes from one of the players. He was brought down. Whistle comes in charge from the central referee. One more whistle straight away in favor of now the team of, that is man in white. It is Iqbal Sports. We are just in the first half of the match now. Second match of the day has been started. Match number 32. First half is in the process. It is the goalkeeper. There he goes. He kicks it. It's a popping kick up in the air for a while. Few players coming around. It was one of the players from the JK Bank team. He sends towards the beyond, in fact towards the line. It is the central referee who's blown once more whistle. It is one more player. He sends his throw in comes straight to one more player. Defender comes in charge. He gives a pass to number 11. It is Adnan. Adnan takes it forward. He's having a deck over the players where he will send it. He sends it towards the left out, but that was well blocked away because the midfielder from the opponent side of Iqbal Sports takes it charge over. Sends to number 7. That is going to be some physical involvement by two players, and whistle comes in from the, in fact, lips of the central referee, and there is one more foul kick that will go straight away in favor of Iqbal Sports. There one of the senior player is going to deliver, Tanveer I guess, and Tanveer is going to deliver a foul kick. Up he goes. It is 34 with Tamim. Tamim goes with
Robust physique, senior most player from the Iqbal Sport. That was not a good kick. That was not like a single player should be in the team. He could have gently pushed it into the penalty box area. All the danger has been cleared by the JK Bank players as they have sent the ball beyond the midline. It's going to be the right out. Number 17 has brought few players down there and it was well blocked bamboozled by the defenders of the opponent's team. In the meantime, once more बात करेंगे यहाँ पर हमारे जो रंजीत साहब है, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जम्मू कश्मीर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, हालांकि जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे कश्मीर वाकई में इनका घर बन गया स्पोर्ट्स की वजह से. इंटरनेशनल प्लेयर प्लेड फॉर जेके इन सीनियर नेशनल्स एंड कैप्टन इन द ईयर ऑफ 2000. क्या बात है. ही ऑल्सो प्लेड फुटबॉल अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 एंड ही ऑल्सो प्लेड इंटर यूनिवर्सिटी, प्रेजेंटली हेड कोच जेके पुलिस. क्या बात है. बहुत ही कमाल के जो इनका जो खिताब दिया गया बहुत बार, दैट इज रियली कमेंडेबल. रिमेन्ड हेड कोच फ्रॉम ईयर 2009 to 2017 and now year 2019 onwards JK Police is top in his pool in Khyber Milk. सबसे पहले मुबारकबाद हो, JK Police is at the top of the level. थैंक यू वेरी मच. बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस टीम की. पहले सबसे पहले कल की मैच की बात करेंगे. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एनकाउंटर्स. एजीज 11 ने भी बहुत ही बेहतरीन खेला. जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगर बेहतर खेला है 80% योगदान जो है वो गोलकीपर को जाता है. क्या कहेंगे आप. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. कल गोलकीपर ने जो एक्चुअली जो हमारा मैच हुआ तो सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट था दैट वाज पेनल्टी. जो पेनल्टी उनको मिले थे हमारे ओपोनेंट्स को, एजी ऑफिस की टीम को, तो वो हमारे गोलकीपर ने सेव की. मैं समझता हूँ कि मैच का टर्निंग पॉइंट ही वही था. अगर वो गोल होता तो स्कोर वुड बी डिफरेंट. चलिए हमारी सेम रहा है. कल जब मैंने भी प्रेजेंटेशन के दौरान ये बात कही थी कि अगर पेनल्टी वहां पर लग गई होती तो यकीनी तौर पे एजीज 11 ने कुछ प्रेशर बनाया होता जेके पुलिस. क्योंकि फुटबॉल में हमने एक चीज़ देखा इस लीग में, जो टीमें गोल करते हैं यकीनी तौर पे दबाव बनाती है अपोनेंट्स को, फिर गोल करना वापस थोड़ा सा मुश्किल होता है. सर एक्चुअली आता है एजी ऑफिस एक प्रोफेशनल साइड है, मतलब उनके बड़े अच्छे प्लेयर हैं. कुछ प्लेयर उनके ऐसे हैं जो आई लीग लेवल तक खेल चुके हैं. लाइक जैसे आपने देखा होगा शाहनवाज है, उसने बड़ा अच्छा फुटबॉल खेला. शाहनवाज है, वानिस हनान नंबर 10 जर्सी में थे जो, ठीक है. तो वो काफ़ी प्रोफेशनल साइड थी. अब होता क्या है, जो एक चीज़ जब एक अच्छी टीम को स्कोर मिलता है तो वो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मतलब उसको कम्पीट करना, क्योंकि जो अच्छी टीम है वो फिर मैनेज करती है उस चीज़ को. हाँ बिल्कुल. हमने अगर इंडिया की बात यहाँ पर करेंगे, जो हमारे सरदार जी है सर, हमारे सरदार लोग जो हमारे भाई लोग हैं, मुझे लगता है वो दो खेल उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल और हॉकी. तो ऐसा क्यों. सर ये बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने. तो मैं अपनी बताता हूँ आपको, अपनी बात बताता हूँ. ये मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है. हम लोग कज़न हैं, 4 भाई हैं हम लोग, मतलब 2 मेरे कज़न हैं, 2 वी आर रियल ब्रदर्स. तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे जो इंटरनेशनल अरेना बना हुआ है वहाँ पे 2-3 सिख लोग देखे होंगे, ठीक है जी. उसमें से एक मेरा देखा तो 2 मेरे कज़न था. तो हमारा जो बड़ा भाई था कज़न, वो सबसे पहले वहाँ पे टाटा फुटबॉल अकेडमी में उनकी सिलेक्शन हुई. तो उनको वो हमारी इंस्पिरेशन थी, वो हम उनको देखते थे. तो मैं देखता, उसका जो उनके जो छोटे भाई थे वो जेके बैंक की टीम में थे. उनका नाम था गुरमीत सिंह. बड़ा अच्छा मिडफील्ड प्लेयर थे वो, मतलब वो काफ़ी देर अपनी बैंक टीम में खेले. तो लाइक वैसे ही एक मेरा कज़न है भूपेंद्र सिंह, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे. कमलजीत सिंह है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है. और तीसरा मैं आपके सामने एज ए मतलब चीफ गेस्ट बैठा हूँ, खानदानी पर. और सर हुआ क्या एक बार कि हमें सभी बोलते भाई आप, हमने गेम खेलते थे, बोले क्या क्या खेल खेलते हैं. हमने फुटबॉल. फिर यार सरदार लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो आप फुटबॉल खेल रहे हो, मतलब समझ नहीं आई. तो हमने बोला फिर ये हमारा पैशन है, तो इसलिए फिर हम फुटबॉल में पड़ गए. और क्या हमारा जो एक जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो वो भी एक एक्सचेंज रोड करके जगह है, वो फुटबॉल का हब है. मतलब उसी एक हमारी जो लेन थी, उसी में हम कोई 7-8 2 5 6 तो इंटरनेशनल प्लेयर थे और 2-3 नेशनल लेवल के प्लेयर थे. आई बिलोंग टू विजय क्लब. तो विजय क्लब एक जम्मू का बड़ा बेहतरीन क्लब था, अभी भी है. हमारे टाइम पे तो बहुत बढ़िया था. एक विजय क्लब होता था, एक यंग हीरो करके होता था, यंग स्पोर्ट्स होता था, जम्मू स्पोर्ट्स होता था. तो जैसे फुटबॉल में आप देखें यहाँ पे जैसे कश्मीर में कुछ बड़ी अच्छी टीमें हैं, जैसे लाइक आप इकबाल स्पोर्ट्स को देखो, ये भी बहुत पुरानी टीम है यहाँ की. अभी तो ये छोटे लड़के हैं, नए जवान हैं, इनको टाइम लगेगा, बट दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल. थिंक इज की मतलब उस टाइम पे अभी उस टाइम पे फुटबॉल पहले भी बड़ा कंपटीशन वाला फुटबॉल था, अभी भी कंपटीशन है. लेकिन जो इकबाल स्पोर्ट्स की पहले टीम थी, हमें याद है हम भी खेलते थे जब फुटबॉल, तो इकबाल
टीम को भी हराना मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। बीइंग ए डिपार्टमेंट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, हमने इकबाल के साथ भी मतलब बड़ा प्रेशर से फुटबॉल खेला है, तो होपफुली हम जीतते थे बट फाइट करते। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैच की भी बात करेंगे बीच बीच में आपके साथ। और 17 नंबर के खिलाड़ी और वो जेके बैंक के वारिस है और बहुत ही तगड़ी खिलाड़ी है और अपने खिलाड़ी को नज़र करते हुए कि कौन खिलाड़ी किसकी जगह पे बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो पोजीशन होती है फुटबॉल में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको अपने कोचेस की पोजीशन के हिसाब से खेलना होता है। लंबी किक आई थी लेकिन इसको बीच में जवाब दिया, बॉल चली गई एक बार फिर साइड लाइन से बाहर, तो मिल जाएगा यहाँ पर थ्रो इन सीधे इकबाल स्पोर्ट्स की टीम को। दोनों टीमें तगड़ी हैं। अब नए खिलाड़ी आ रही है इकबाल स्पोर्ट्स में, अदरवाइज जैसे कि हमारे पाजी ने कहा कि रंजीत पाजी जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं इंस्पेक्टर साहब है, तो उनका भी ये मानना है कि इकबाल स्पोर्ट्स की टीम एक बेहतरीन टीम हुआ करती थी और अभी नए नए खिलाड़ी है, टीम को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए पासिंग जेके बैंक की टीम के खिलाड़ी नंबर 11 शायद कुछ नाखुश नज़र आते हुए और उनके सामने और एक खिलाड़ी में भी जो उनकी सेंट्रल रेफर है उन्होंने यहाँ पर जो किक दी है वो सही जगह पे वहाँ पे नहीं लाई गई थी। अब किक को जो है थोड़ा सा पीछे लिया गया, एक बार फिर पास दिया सीधे अपने डिफेंडर को। डिफेंडर इस वक्त बॉल को पकड़ने में कामयाब, उन्होंने बॉल को आगे लिया, बॉल आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने अपना पास दिया मिडफील्डर के लिए जो बिल्कुल साइड लाइन के आसपास बैठे हुए खड़े हुए थे। उन्होंने बॉल को दिया लेफ्ट आउट को, लेफ्ट आउट से लेके आगे तक अभी तक जेके बैंक की टीम जो है उन्होंने बॉल को आगे नहीं लिया। सवालात जो हमारे जो रंजीत साहब है इनसे हम पूछेंगे और आपका सफ़र जो है इंटरनेशनल फुटबॉलर आप रहे हैं उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। और बहुत अच्छा लगता है कि अपने नेशनल प्लेयर्स को देखना, अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना जो अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा रहा ये आपका सफ़र? सर ऐसा है, फुटबॉल हमने मतलब बड़ी यंग एज में शुरू किया था। लाइक जैसे आपने मेरे प्रोफाइल में भी बोला कि मैंने पहले अंडर 12 खेला फुटबॉल, अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, 19 खेला, देन वी गो फॉर सीनियर नेशनल। तो जर्नी तो सर ऐसा है कि बेसिक्स से आप हमने शुरू किया था, फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। उसमें मैं क्रेडिट दूंगा मेरे कोच थे जो अभी भी मतलब वो हमारे ऊपर आप कह सकते हो हमारे गॉडफादर है, हमारे मेंटर है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई कोच श्री महेंद्र वर्मा जी। वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ही बेसिकली ही बिलोंग्स टू जम्मू। वो जम्मू में वो साई कोच थे फुटबॉल में, साई कोच थे। नो ही इज़ रिटायर्ड बट वो हमारे जो मेंटर थे जो हमने खेला इंटरनेशनल लेवल में। और भी मेरे भी कुछ और कलीग्स भी हैं जो जम्मू से जिन्होंने इंटरनेशनल खेला। जैसे मैं आपको अपने भाई की बात करूँ, कमलजीत मेरा ब्रदर है, भूपिंदर सिंह मेरा ब्रदर है, ये लोग भी इंटरनेशनल है। और ऑल क्रेडिट जो है वो नो डाउट हम लोग बड़े मतलब मेहनत करते थे, हमने बड़ा वो किया बट अल्टीमेटली कोच के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, मतलब कोच एक सही दिशा में आपको गाइड कर रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। अब रियासत हुआ करती थी, अब तो यूनियन टेरिटरी है, बहरहाल आप एज यूनियन टेरिटरी बात करेंगे। तो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न सेम लोग है, बाई वहाँ से है, बाई यहाँ से भी है, लेकिन स्पोर्ट्स की वजह से हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। किस चीज़ को आप फ़र्क करते हो स्पोर्ट्स में कि जो टैलेंट है जम्मू का, कश्मीर का और जो स्पोर्ट्स का जो लेवल है, आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे जम्मू और कश्मीर डिवीज़न को लेके? देखो सर ऐसा है, मतलब मैं अब कश्मीर की बात करूं क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे आते मतलब हम लोग जब से ज्वाइन किया तब से मैं यहाँ पे ही हूँ। तो हम लोग मूव करते हैं जैसे दरबार मूव के साथ 6 महीने यहाँ पे 6 महीने जम्मू में। तो कल्चर की बात करें तो नो डाउट मतलब कश्मीर में कल्चर है फुटबॉल का। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आप बारामूला चले जाओ, वहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है, आप कहीं और चले जाओ, आप मतलब बांडीपुरा चले जाओ, आप जहाँ पे भी जाओ मतलब आप फुटबॉल देखोगे। नो डाउट यहाँ पे फुटबॉल हो रहा है। बट आप टैलेंट की बात करें तो जम्मू में भी बड़ा टैलेंट है फुटबॉल का। क्या इसमें ग्राउंड्स की कमी है? जम्मू में थोड़ा सा मुझे लगता है ग्राउंड कम नजर आ रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आपका। मैं इस बात पे आने ही वाला था। अभी सर जैसे यहाँ पे टर्फ बनी है, ठीक है, अभी क्या टर्फ में हमें कोई इशू नहीं है, बारिश भी होती है तो हम मैच खेल सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेहतर का, जैसे अब परसों हमारा मैच था, ऑल वेदर फिजिबल है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जम्मू में ये ग्राउंड्स का बड़ा इशू है, जम्मू में बहुत ज़्यादा इशू है। अभी एक टर्फ वहाँ पे परेड ग्राउंड में बढ़ रहा है, तो उसमें अब हमारे जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वो टर्फ पे मतलब काम
चल रहा है। होपफुली अगर वो टर्फ बन जाए, एक टर्फ इन्होंने नगरोटे पे बनाया, बट वो मेरे को लगता है उसका साइज कोई वो मतलब छोटे बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, अकेडमीज के लिए, बट वो जो जम्मू में टर्फ बनेगा उससे मेरे को लगता है कि जो टैलेंट है और ज़्यादा राइज होगा। जी बिल्कुल, बात जारी रहेगी, बात करेंगे यहाँ पर इकबाल स्पोर्ट्स और जेके बैंक की टीम के माबीन सवालात और भी पूछे जाएंगे, लेकिन वो सवालात मेरे बाद अब इरशाद से भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी बात यहाँ पर फुटबॉल के मैच के बारे में भी करेंगे। आज का मैच जो चल रहा है यह जेके बैंक, उनका सामना हो रहा है यहाँ पर इकबाल स्पोर्ट्स। दोनों टीमें बहुत तगड़ी टीम है। जेके बैंक का थोड़ा सा एज रहेगा मैच में क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर को लेना पड़ेगा क्योंकि जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के ये 32वां मैच चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम जो आगे आगे जाते हुए और इस कारवां को आगे ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं ये टूर्नामेंट जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम को आएगा। और इस टूर्नामेंट में कुल मिला के 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पूल ए में 8 टीमें, पूल बी में 8 टीमें। तो अभी तक मुझे लगता है कि करीब करीब 4 मैचेस हर टीम ने खेले हैं, तो जिससे आपको साफ नजर आ रहा है कि 8 चुके 32। तो यहाँ पर मिल सकता है मौका और यहाँ पर बदकिस्मती ने साथ दिया, वरना यकीनी तौर पे ये जेके बैंक टीम को हो सकता था पहला तगड़ा मुकाबला जो चल रहा है इस वक्त। प्रेम यहाँ पर बिल्कुल जो है प्रेम से दूर रहे और यकीनी तौर पे हो सकता था यहाँ पर जेके बैंक टीम का खाता खुलने के इम्कानात। और मैं माइक देना चाहूँगा यहाँ पर हमारे बीच जो और एक मेरे साथी बैठे हुए हैं इरशाद साहब और एडवोकेट जो कि पेशे से एक वकील है, और लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और ANN न्यूज़ ने उनको काम दिया है, जो वकालत है वो कॉम बॉक्स में की जाएगी। और इरशाद साहब आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आप भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है रंजीत साहब से। Yes, thank you so much. Yes, absolutely. We have in our com box a very nice guest, Mr. Ranjit Singh sir. He has been an international player and played for Jammu and Kashmir, and he is from Jammu. Yes, it was just we could say that unluck for the number 25 from JK Bank. Otherwise, this could have been the possible goal, but nearer to that side post it goes, and right now the ball is in that penalty area and the defender just passes it to his goalkeeper. Yes, we have a special guest here, so let's talk about the JK police team as well as the team right now who are in the middle. सर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैच यहाँ पे चल रहा है सर, ये इकबाल स्पोर्ट्स और जेके बैंक की टीम का मैच इस वक्त चल रहा है सर, लेकिन अभी जो जेके बैंक में जो खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ये तकड़े खिलाड़ी है, पासिंग बहुत अच्छी है, मिडफील्डर भी अच्छे काम कर रहे हैं, डिफेंस में भी जो डिफेंस लाइन पे भी जो खिलाड़ी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, स्ट्राइकर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कल हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर बैठे थे रियाज अहमद साहब, तो हमने उनसे भी बहुत ऐसे सवाल पूछे थे, तो आपसे भी मैं वही एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा सर। ये जो अभी 2 टीमें इस वक्त आपस में खेल रही हैं, तो आप सर ये बताइए कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है, जो आप तो खुद एक कोच अब जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, तो क्या आपकी नज़र खाली अपनी टीम तक रहती है या जो खिलाड़ी खेलते हैं बीच मैदान पर, क्या उन पे भी आपकी नज़र रहती है? कल जो बात हमारी रियाज साहब से हुई थी बिल्कुल वो ये कह रहे थे, बिल्कुल हमारी इन पे नज़र रहती है, हम देखते हैं कि एक खिलाड़ी कैसा है, अगर इसमें क्षमता है, अगर इसमें दम है तो बिल्कुल हम इसको पिक करके अपनी टीम में भी बुला सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ा सही बोला आपने। इसमें सर ऐसा है कि देखिए ये जो अभी जैसे ये दोनों टीमें खेल रही है, नो डाउट बैंक से प्रोफेशनल साइड बैंक है, प्रोफेशनल कोचेज, ठीक है। मैं जैसे आपसे पहले भी बात कर रहा था, मिस्टर हिलाल है जो मेरे कलीग भी हैं, तो ही इज थॉरली प्रोफेशनल कोच। अभी बैंक टीम का ये है कि अब जब मैच में एनालाइज कर रहा हूँ, ये जो मैच चल रहा है ना, ये अभी जब तक स्कोर नहीं होगा ना तब तक थोड़ा सा मैच आपको लगेगा। द मोमेंट बैंक स्कोर द गोल, तो ये जो आपको ये मैच दिख रहा है वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अब तक स्कोर नहीं हो रहा। मेरे को लगता है बैंक थोड़ा सा इस मैच को मतलब लाइटली ना ले लेके ही, क्योंकि गेम इज गेम। तो बट होपफुली आई थिंक बैंक हैज बेटर साइड, बैंक मतलब इस मैच में जीतेगा। यस, इस वक्त अजान का वक्त चल रहा है, सो फॉर द मैटर ऑफ रेस्पेक्ट वी विल टेक ऑफ फॉर अ मिनट एंड वी विल बी राइट बैक।
Let me tell you, the viewers, that this is the match number 32nd of the Khyber Premier Football League, which is organized by Jammu and Kashmir Football Association in collaboration with J&K Sports Council. The news from the centre is not good. One of the player of Iqbal Sports Club is not feeling well, and the physio been called in, so he giving some cooling there, and so he will be back into his toes as well. Just remind our viewers that we have a very special guest, Mr. Ranjit Singh in our come box today, and he is sharing his viewpoints, he is sharing all his experiences with us, and it will be so much helpful for the youths as well and for the players who are right now in the middle, and he is sharing every bit of experience from the past as well as today. And that match between Iqbal Football Sports Club versus JK Bank 11, and no team has yet been able to secure a goal here, and right now the ball is in the middle. Let me remind you also that the team in purple colors is the team of Jammu and Kashmir Bank 11, and the team in whites and green is the team of Iqbal Sports. So here he is just trying to march forward. He's going swiftly, but the goalkeeper with a slide comes out from the Jammu and Kashmir Bank. Once again the ball being snatched, but the foul has been declared there by the referee there. That was a very, very nice attempt from the goalkeeper, and he just swiftly came out from that post into that rectangular area. And if there could have been any possibility, he just thrown that possibility away, and there is no possibility now, and that the foul was declared there. And a very, very nice foul kick goes in favor of the JK Bank 11 team. Yeah, this is number 11, the central defender. He just passes it to his winger just trying to go forward, and he just passes, he bisects between the two players. Will he go? Oh dear, the goalkeeper from Iqbal Sports came out and gobbles it, and there is no chance to the team of Jammu and Kashmir Bank to go here for the lead. And he kicks it, it is in the air, it has gone over that central line, well trapped there by number 16 from Iqbal Sports Club, and he forwards his number 17. Until we have some ignition in the match, till then we will talk Mr. Ranjit Singh about sir, there was a question which you haven't given a properly an answer, so you are just saying that I will just answer it. हाँ सर, वो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि वेदर आप जो मैच वॉच करते हो। यस, हम लोग हर मैच वॉच करते हैं, क्योंकि अदर देन प्लीज बिकॉज क्योंकि हमें हो सकता है कल इन टीमों के साथ खेलना पड़ जाए, तो उसमें हम उनकी देखते हैं, मतलब हमें क्या अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है इस मैच के लिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए इस मैच के लिए, क्योंकि इट डिपेंड्स कि टीम टू टीम आप कैसे अपने आप को मतलब
टीम को मतलब कैसे, किस टीम के साथ आप कैसे खेलोगे, ये मैच देखने से ही पता चलता है। तो सेकंड एक आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई यहाँ पे टैलेंट मिलता है तो यस, हम लोग टैलेंट के लिए भी अगर कोई हमें अच्छा लड़का मिलता तो हम उसके लिए उसको अप्रोच करते हैं। लाइक वी हैव पॉलिसी, मतलब हम लोग उसको कांस्टेबल या एसपीओ, जो एसपीओ हम उसको मतलब कोशिश करते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है वो आ जाए। मोर ओवर कुछ प्लेयर हमारे जो हैं वो बैंक टीम में भी लिए गए हैं। लाइक 3-4 लड़के थे, जैसे हमारे पास एक गोलकीपर होता था पुलिस में, वो बैंक टीम ने लिया। एक जम्मू का लड़का था वो बैंक टीम में आया। तो ये चलता रहता है, मतलब बैंक टीम भी देखती है कि जो बेटर प्लेयर क्रीम हो, वो जो अच्छी टीम है वो तो चाहेगी कि मतलब उसको अच्छा प्लेयर मिले। तो हमारी भी ये होती है, मैं भी वॉच कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ लड़कों को मैंने भी यहाँ पे नोटिस किया। तो होपफुली अगर हमें चांस मिलेगा तो वी विल इंडक्ट देम। Sir, absolutely. Your team needs no introduction. There are so many stars in your team. JK Police 11 as yesterday. The fans might be watching that. What a spectacular show it has been shown by the goalkeeper, and he just worked 80% of her work for his team. And in the end, it was Jammu and Kashmir Police who just won it 2-0 against that team. Here it goes, and it was once again well taken by the goalkeeper there from Iqbal Sports, and he just concludes all that opportunity which could have gone in favor of JK Bank 11. He kicks it very high. It's just gone over that center of the circle. He kicks it forward, and it is now the aerial passing going on, but the defender is marching towards that. The number 14 from Iqbal Sports just gently passes it to his other comrade there, who just tried to pass it, but it was well blocked there by one of the JK Bank winger, and he just trying to go forward, and the deflection from Iqbal Sports gives one more chance to the team of JK Bank. Here number 6 is just covered by number 16, but in the end he just passes towards his goalkeeper gently passes to the number 20. सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी भी बिल्कुल नज़र रहती है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। जैसे कि कल हम सर से बात कर रहे थे, रियाज अहमद मेरे साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक नज़र है आर्को फुटबॉल में कुछ ऐसे खिलाड़ी हमें दिखे हैं। महराज एक लड़का है, एज शफी माइट भी अवेयर अबाउट हिम एज वेल, कामरान, वसीम, एंड देयर आर सो मेनी आई वुड से, उन पे हमारी पैनी नज़र है कि वो कैसा खेल रहे हैं, एंड बिल्कुल हम उनको अप्रोच करने वाले हैं कि अगर वो चाहते हैं तो वो बिल्कुल हमारी टीम में आ सकते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझ सकते कि इससे दूसरे जो टीम्स है, जो यहाँ पे दूसरी टीम्स है लाइक इकबाल स्पोर्ट्स है या दूसरी टीम्स है, नॉवेल्टी है, या और हो गई बहुत सारी ऐसी टीम्स है जो इस प्रतियोगिता में बल्कि हम बात कर रहे हैं हिस्सा ले रही है, क्या उनके लिए रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहा है कि आपकी टीम में अगर कोई सितारा है तो उसके लिए कोई अप्रोच, क्या आप समझ रहे हैं कि उनको फाइनेंशियली जो है अगर वो लैग कर रहे हैं कहीं पे, क्या उनको वो स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ? बिल्कुल सर, आप ठीक बोल रहे हो कि मतलब देखो, जैसे ये कुछ टीम तो आर्को की, जैसे ये प्राइवेट टीम है, इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब एक लोकल टीम प्राइवेट टीम को स्पॉन्सर करना और टीम को चलाना, तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल बात है। दूसरी, जैसे आपने बात कही लड़कों की, हमारे 2-3 लड़कों में नज़र है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले हमने जम्मू में ट्राई रखे थे फॉर द इंडक्शन ऑफ एसपीओ से। उसमें कैन यू बिलीव नियर अबाउट 70 to 80% जो प्लेयर्स हैं फ्रॉम वैली एंड फ्रॉम जम्मू, स्पोर्ट्स उसके लिए वो एसपीओ के ट्रायल थे, वो वहाँ पे जम्मू में आए थे। उसमें कुछ लड़के हमने आइडेंटिफाई किए थे, हमारा एक कमेटी बना थी, उसमें कुछ लड़के हमने आर्को से आइडेंटिफाई किए थे, कुछ हमारे रियल कश्मीर के लड़के थे, कुछ लड़के पीडीसी डिपार्टमेंट से भी, वो भी विलिंग थे पुलिस में आने के लिए। हमने उनका सबका मतलब लिखा है, लेकिन कुछ कारण थे कि वो अभी तक वो लिस्ट फाइनल नहीं हुई। तो होपफुली मेरे को लगता है कि उसमें जो भी अच्छा लड़का था, लाइक वो जम्मू का हो चाहे वो श्रीनगर का हो, तो वो होपफुली मेरे को लगता है कि वो हमें कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। वो हमें मेरे को लगता है अगली टूर्नामेंट में शायद वो हमारी तरफ से खेलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर एक संदेश भी जाता है कि अगर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तो बिल्कुल उनको ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी है, ऐसे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, सो दैट कि ये जो टीम्स है यहाँ पर अभी खेल रही है वो जो है यहाँ पर लैकिन कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियली जो इनसिक्योरिटी वी वुड से कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वो दिखा रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ वहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पर मैच की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
अभी दोनों टीमें हैं इस वक्त 0-0 पे खड़ी है। ये खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग का मैच नंबर 32 इस वक्त फर्स्ट हाफ जारी है सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड TRC श्रीनगर से, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अभी मुकाबला जारी है। यहाँ पर JK बैंक की टीम पे अगर नज़र डालें तो JK बैंक की टीम जो है इस वक्त पर्पल के कलर्स में आपको दिख रही है। उनकी टीम कुछ ऐसी है: शबीर, फरहान, इरफान, फैसल, अजहर, अदनान, शाहिद, प्रेम, वारिस, फुरकान, आकिफ, तौफीक, उनीब and Gautam. And the team officials for the JK Bank: Hilal Rasool, their head coach; Tariq Ahmed, manager; and Shahnawaz, their physio. The ball has gone out of the touchline. The throw-in here goes in favor of the JK Bank. Number 16, Shahid just throws it in, and it has been taken by number 17, Waris. Waris is just trying to go forward. He cross passes it, but there was none to take that pass. Otherwise, this could have been the possible opportunity for the JK Bank. And बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि मैं वही सवाल आपसे फिर से कहूँगा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो अभी हम प्राइवेट की बात कर रहे थे, प्राइवेट में तो बहुत ही मुश्किल है किसी को स्पॉन्सर करना, ऐसी उनके पास उतने फंड्स भी नहीं होते हैं या कहीं के पास मतलब यहाँ पर जो बाकी डिपार्टमेंट्स की टीम है, जैसे कि JK फॉरेस्ट की रही है, JK PDC की रही है, JK बैंक की टीम है यहाँ पर सर, जी, तो क्या पॉलिसीज़ उनको बनानी चाहिए कि सो दैट कि जो प्लेयर्स का इवेजन रहता है, दूसरी टीम में चला जाना रहता है, क्या पॉलिसीज़ उनको फ्रेम करनी है सो दैट दे कैन होल्ड देयर प्लेयर्स एट देयर बैक? सर वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसी पे आने ही वाला था तो आपने मेरे को पूछ लिया। सर देखिए, जो डिपार्टमेंट टीम्स है ना, मैं सबसे बड़ी आपको एग्जांपल दूंगा JK बैंक टीम की। JK बैंक टीम इज़ हाईली प्रोफेशनल टीम। ये अभी J&K नंबर टॉप पे टीम है। जो हमारी पिछली प्रोफेशनल लीग हुई जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके क्योंकि कोविड था, तो हमारा थोड़ा इशू था, हम लोग ड्यूटीज़ पे थे, तो उस टूर्नामेंट को भी JK बैंक ने जीता था। JK बैंक नंबर 1 पे आया था, उसमें JK बैंक नंबर 1 पे था, हैदर स्पोर्ट्स था नंबर 2 पे। तो 2-3 आई लीग की टीमें यहाँ पे बड़ी अच्छी है, डाउनटाउन FC है, कश्मीर एवेंजर्स है, रियल कश्मीर है, ठीक है। तो थिंक इसकी ये जो डिपार्टमेंट जो पॉलिसी की बात कह रहे हो, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात है जो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए डिपार्टमेंट की। लाइक देखें आप बैंक टीम पे देखें, बैंक टीम में यहाँ मेरे को लगता है कि इस टीम में जो प्लेयर खेल रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है इसके हिसाब से 14 प्लेयर हैं। मेरे को लगता है 14 प्लेयरों में सर इसमें कम से कम 7 या 8 लड़के वो हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं। जी सर। और इनको मेरे को लगता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं एसोसिएटेड हूँ स्पोर्ट्स के साथ, तो इसमें 8-10 लड़के ऐसे हैं जो मतलब अभी कॉन्टैक्ट पे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट इनके मतलब अगर कोई सीनियर अफसर्स देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ इनको मतलब आप परमानेंट कीजिए। नो डाउट परफॉर्मेंस मैटर्स, बट ये परफॉर्मेंस मतलब बैंक टीम को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरे को होता है जितने भी टूर्नामेंट होते हैं मैक्सिमम हमारा कंपटीशन बैंक के साथ ही होता था। तो ये 8-9 साल से मतलब मेरे को लगता है कॉन्टैक्ट पे है। तो सबसे पहली बात इनको पक्का करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब देखो एक जो प्लेयर है उसका एक कैरियर होता है, ठीक है। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 5 साल, बड़ा अच्छा कोई प्लेयर होगा 10 साल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने सिक्योरिटी, जब तक हम उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं देंगे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इसको टीम को भी रिवाइव करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे बड़ी पॉलिसी मैं अपना क्रेडिट अपनी J&K पुलिस को दूंगा, क्योंकि सर हमारी पॉलिसी हम अगर कोई SPO लेते हैं, हम SPO को 3 साल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें एक कंडीशन होती है कि हमें या तो ऑल इंडिया पुलिस लेवल में जो हमारा नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है, या उसमें हमारा कोई मेडल आए, या फिर हमने स्टेट में जैसे स्टेट चैंपियनशिप है उसमें हमारा मेडल आना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसी सिलसिले में मैंने भी कुछ लड़के अपॉइंट किए थे, मतलब लाइक जैसे आपने कल मेरा एक लड़का देखा होगा खेलते फैजल रशीद, ही था मेन स्कोरर, अभी लीडिंग स्कोरर है मतलब इस लीग का, तो उसको भी हमने SPO अपॉइंट किया था। तो अभी वो उसका भी हमने कन्वर्ट उसको कर दिया कांस्टेबल। आई एम थैंकफुल टू माई डिपार्टमेंट, माई ADG साहब, माई DG साहब, माई ADG मिस्टर गिलानी साहब एंड माई DG मिस्टर दिलबाग सिंह साहब। इन्होंने हमारा स्पोर्ट्स जो है ना मतलब SPO का मसला ये टेक ओवर किया और कुछ लड़के कन्वर्ट हुए। ऐसे ही PDC का भी यही सिस्टम है, उसके पास भी कॉन्टैक्ट में लड़के हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि देखो ये लड़के क्या होता है कि ये फिर मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं रहता है कि मतलब जब तक इनको जॉब नहीं मिलेगी। रिटेनरशिप बेसिस पे तो क्या कर सकते हैं? 5,000-6,000 की रिटेनरशिप, उससे क्या हो सकता है? सर देखो यहाँ पे इतना फुटबॉल आप मेरे को आप सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो अगर कोई 5-6 हज़ार रुपये दे रहा है, जम्मू से कोई लड़का खेलने आएगा, वो 6 हज़ार रुपये में मेरे को बताओ वो क्या खाएगा क्या खेलेगा,
तो ये जो पॉलिसी है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली पॉलिसी तो मेरे को लगता होनी नहीं चाहिए। हाँ, आप कुछ उसमें कुछ क्राइटेरिया रखो, लाइक मतलब कुछ लड़के कॉन्ट्रैक्ट में ले लो, कुछ लड़के परमानेंट लो। परमानेंट देखो, परमानेंट ही सोल्यूशन है, क्योंकि जब वो उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी तभी वो कैन प्ले हिज हार्ट आउट देन। बिल्कुल ऑब्वियसली, मतलब जब आप उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो वो खेलेगा। जब उसके आप मेरे को बताओ 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में मतलब क्या खेलेगा। और इतना आपने कंपटीशन देखा है फुटबॉल में, कंपटीशन से स्पेशली इन श्रीनगर, तो कंपटीशन तो आपके सामने है। आई लीग टीम से बन रही है, हर टीम में आप नाइजीरियंस देख रहे हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है। मतलब आप नाइजीरियंस को देख रहे हो, आप खेलने फॉरनर इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख रहे हो। फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड है सर अब काफ़ी हाई हो गया, रेज हो गया। तो हमें सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को भी सोचना चाहिए कि नहीं। मैं अपनी पुलिस की बात भी करता हूँ, मैं भी एक उनको मैंने राय दी कि सर हम एसपीओ से भी बेटर है, हम कांस्टेबल्स लें, सो डैट कि हमें अच्छा क्रीम मिले, हमें भी वो प्लेयर मिले कि हम जो उसको हम लाएँ और खिलाएँ। Sir, like you talked about Faisal, he hit 2 goals yesterday and he was very much up to the mark, and he hit 2 goals. And recently you were saying that he was recently in fact from the SPO to constable. So that's why if we will provide some sort of security to the players will play their heart out, they will just work hard, and they can even from that very platform they can go higher and higher. जी सर, मैंने आपको एग्जांपल दी फैजल की, ऐसे कुछ और लड़के भी थे मेरे पास, हमने वो भी कन्वर्ट किए और दे आर प्रेजेंटली डूइंग ट्रेनिंग। तो थिंक इसके मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब हमें परमानेंट इनको करना चाहिए। बैंक, मैं आपका बैंक का जैसे बोल रहा हूँ, बैंक टीम का, अब बैंक टीम मतलब सुनने भी अच्छा नहीं लगता है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब ये हार्डली कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000 के कॉन्ट्रैक्ट में होगा, जबकि इनका ये टैलेंटेड लड़के हैं सारे। नॉट ओनली बैंक, आप फॉरेस्ट की टीम को देखो, वो टीम भी एक टाइम पे मतलब बहुत अच्छी टीम थी। हर मैच में फॉरेस्ट के साथ फाइट होती थी, कभी वो जीतते थे, कभी हम जीतते थे, लेकिन वो भी टीम खत्म होगी बिकॉज ऑफ दिस। So here the goal number first for the team of Iqbal Sports, and they are roaring and they are in a mountain joy that this is the goal number first for these youngsters. Oh dear, there were so many chances to the JioTv Bank team, but they couldn't convert. And what hell, it's the team of Iqbal Sports, and they have converted one of the opportunity. Header comes out from the defender, but we have look at these replays there. Absolutely fantastic. There were 3 players who were converging there, but it was in the end the youngster from Iqbal Sports who converted that opportunity into a goal, and they are in a real joy there. Look at the rejoice, look at that. And so the goal number first here comes for the team of Iqbal Sports. It comes nearer to the time of first half, and they are managed to get a goal here. So what can you say about that goal? सर ये एक्चुअली बड़ा फाइन गोल किया लड़के ने, मतलब ही इज ए यंग प्लेयर, मतलब एरियल पासी से खेला और ये बड़ा अच्छा गोल मिल गया। तो ये मेरे को लगता है कि इसमें बैंक को थोड़ा सा प्रेशर आएगा। नो डाउट बैंक इज गुड साइड, बट जब टीम को गोल होता है तो प्रेशर आता है जी। Yes, indeed. The team who is able to secure the first goal here is the team in whites, is the team of the Iqbal Sports, and they have opened their account. And one of the strikers from his header, it was a flick from that header, and back goes into the net. So the first goal for the Iqbal Sports. सर यहाँ पर बातचीत जारी रहेगी, आपसे और एक सवालात यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा। सर, ये जो सारी टीमें हैं जो इस वक्त इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनमें जैसे कि हमारे यहाँ कॉम्बॉक्स में भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट्स आए हैं जो कि एक फुटबॉलर रह चुके हैं, अब वो एकेडमीज़ खोल के बैठे हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा है उन तक ये बात पहुँचाई जाए, हम कैसे खेल रहे थे और क्या रोल था हमारा और कैसे हम खेलते थे। लेकिन बात यहाँ पर एक चीज़ की आती है, यहाँ पर जावेद साहब थे यहाँ पर जो आए थे, जो फॉरेस्ट को कह रहे थे कि मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है पिछले 17 साल। जावेद मतलब जो भी उसके बाद जो वो अपनी तारीफ तो खुद नहीं कर रहे थे, जो उसके बाद बहुत सारे ऐसे गेस्ट्स आए हमारे कॉम बॉक्स में जो उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। ही वॉज सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर वी हैवंट एवर सी, बट
वही बात फिर से आती है। अब जो है वही कह रहा है कि 7,000 की तनख्वाह मैं लेता हूँ, कभी 5-6 महीने बाद, कभी 7 महीने बाद। मेरी 3 बेटियां हैं, तो उससे मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैं उनसे यही इन कांटेक्ट में हूँ अपने डिपार्टमेंट से। अगर मैंने पूरी लाइफ अपनी दी है इस डिपार्टमेंट को, तो मैं परमानेंट क्यों नहीं हो जाऊं? तो क्या जैसे जेके पुलिस की जो पॉलिसीज़ है, जहां आपने स्पोर्ट्स में आपने एक पॉलिसी फ्रेम बिल्कुल की हुई है कि कितने जो है हम एंट्रेंट्स, जो न्यू एंट्रेंट्स जो है उनको हम जॉब सिक्योरिटी देख सकते हैं, तो क्या सर ये नहीं हो सकता है कि जो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स, क्या ऐसी पॉलिसीज़ वो फ्रेम नहीं कर सकते सर? बिल्कुल सर, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट टीम मतलब बड़ी अच्छी टीम थी उस टाइम पे भी। हम उस टाइम पे भी हम बोलते थे कि यार ये लोग परमानेंट होने चाहिए। कुछ लोग तो उसमें सर ऐसे हैं जो मतलब वो आप मानोगे वो फुटबॉल ही छोड़ दिया उन लोगों ने, बिकॉज कि उनको कुछ मिल नहीं रहा था। सेकेंडली सर ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। आपको परमानेंट पोस्टिंग देनी पड़ेगी, तभी जाके हम फुटबॉल को रिवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो टीमें हैं, जैसे पीडीसी अभी कॉन्ट्रैक्ट पे खिला रहे हैं, ये लोग सर अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़के रियल कश्मीर में थे, कुछ बैंक में थे। जो लोग पहले रियल कश्मीर में थे या पीडीसी में थे, वो लोग छोड़ रहे हैं, वो अपने क्लब छोड़ रहे हैं। दे रादर प्रेफर टू गो आउट इन द सेंस कि मतलब वो नेशनल लेवल पे किसी अच्छी टीम में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो यहाँ पे बैठेंगे, जम्मू में रहेंगे, कश्मीर में रहेंगे, तो हमारा फुटबॉल और ज़्यादा डेवलप होगा। तो क्या सर ये नहीं कह सकते कि ये फुटबॉल के लिए नुकसान है स्टेट में? बिल्कुल सर नुकसान है। देखिए हमारा मैं एज ए इंटरनेशनल प्लेयर और एज ए मतलब आपका गेस्ट स्पीकर मेरी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि सर तो फुटबॉल को थोड़ा प्रायोरिटीज़ में दिया जाए, क्योंकि फुटबॉल जो गेम है यहाँ पे सर वैली में आपने देखा है इसकी बहुत क्रेज़ है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। मतलब पहले भी डिपार्टमेंट में टीमें होती थी, डिपार्टमेंट परमानेंट लेते थे। इवन कि आप देखो बैंक में जितने भी लड़के लगे पहले परमानेंट लगते थे, ठीक है। तो वो वैसी पॉलिसी फ्रेम हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, सो डैट जो हमारा प्लेयर है वो सफ़र ना करे। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये रहेगा कि अभी जो फ़र्क क्या देख रहे हैं अपने, जब आप अपने दिनों खेल रहे थे 2000 में, तो आज की जो कवरेज जो है चैनल एफ और एनएन न्यूज़ की जो कवरेज यहाँ पर चल रही है इन खिलाड़ियों को, तो इस बारे में यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश थी, लेकिन वहाँ पर टकरा गए दो खिलाड़ी आपस में। प्रेम और जो गोलकीपर है इस वक्त वो आपस में टकरा गए, कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो देखना चाहेंगे यहाँ पर फिजियो जब तक आते हैं तब तक सर से बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। तो अपने दिनों आपको इतनी कवरेज नहीं मिलती थी जब आप खेल रहे थे अपने अरूज पे, जब आप थे कि आप खेल रहे थे, चाहे आप स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सर आपने खेला है, आपने रिप्रेजेंट किया हुआ इंडिया को। तो सर ये बताइए कि क्या फ़र्क देख रहे हैं आज के इस फुटबॉल में? आप तो एएनएन न्यूज़ की वसातत से इस वक्त आप तक कवरेज पहुंच रही है, हालांकि हर घर में पहुंच रही है, हर फुटबॉलर के पास पहुंच रही है, हर जो शायकीन फुटबॉल है उसके पास पहुंच रही है। इस बारे में सर आपका क्या है? सर ये जो आप इसकी कवरेज की बात कर रहे हो, सब एएनएन की जो आप कवरेज की एएनएन फिफ्थ प्रोडक्शन की जो आप बात कर रहे हो, ये लाइव कंसेप्ट है सर। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना मैच देख सकते हो, ठीक है। जो आपकी वीकनेस है, जैसे अभी मिस्टर प्रेम है जो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ जेके बैंक, ही इज़ द गोल स्कोरर। तो अभी उसने मिस किया, तो हम बेस्ट पार्ट तो इसका पहले तो ये है कि इसको वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, इसकी क्रेज़ बड़ी है। इवन मैं मेरे अपने मतलब कुलीग से जो जम्मू में है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो भी मैच देख रहे थे कल हमारे वाला मैच। और ये जो मैच है इसमें हमें सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि हमें अपनी वीकनेसेस, अपना स्टाइल ऑफ प्ले पता लगता है। अगर किसी ने कोई गलती की है, जैसे मेरे पिछले मैच में मैंने वीडियो बताया लड़कों की, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वीक हैं, यहाँ पे हमें वर्कआउट करना है। तो बेस्ट पार्ट तो ये है सर। दूसरा ये है कि इससे कवरेज होने से मेरे को लगता है फुटबॉल की ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। Sir, now I will turn my microphone towards Mr. Shafi Para and he will go forward with a questionnaire with to Mr. Ranjit Singh sir. And here goes Shafi Para. JK Bank, they have yet to score a goal and they are yet to go off the mark as Iqbal Sports have taken a lead of 1-0 in the first half of the match number 32 of Khyber Premier Football League 2021, in which 16 teams are participating and almost 4 matches for each team have played so far, and JK Police team is at the top of the list. Meanwhile, ball has been placed by the goalkeeper from the team of Iqbal Sports. Before this, Prem had a
few wonderful chances, but he could not convert. It's going to be a long kick beyond the midline and passes it. Comes number 7, dribbles it and could not dribble it and sends the ball to the Iqbal Sports. One of the player from the midfielder straight sends to the right out. He was way away as goalkeeper comes in charge. He sends his ball straight away, straight to the goal. In fact, to the defender of the JK Bank's team. He takes it further ahead with jersey number 25, a magnificent and a very, very talented player, that is Prem, and he's taking it forward. There we go. It was Ubaid with jersey number 18 and Arsalan, who had such a wonderful communication in the 6-yard dimensions in front of the goal mouth. They scored a goal. Finally, credit goes to the Ubaid, who just makes a spectacular header and sends and taps the ball beautifully into back of the nets. With that goal, Iqbal Sports were off the mark. Iqbal Sports are 1 and JK Bank have yet to score. There we go. It's going to be Iqbal Sports defender. He clears out the danger there and ball is going around the touchline. Few players in fact hugging the line, and there we go is the assistant referee who is putting his arm, putting his hands and flags up in the air, showing signals to the assistant referee that this is in fact to the central referee that this is going to be a throw in. That will come in favor of Iqbal Sports. Defender comes, he sends ball to the midfielder. Midfield gives a header that goes to his opponent player from the JK Bank's team with number 11, and number 11 shifted the ball towards other side. That was Adnan there. Adnan could not receive the ball. Once more ball is going straight to the number 39. He could not anticipate the ball. Not a good execution, but JK Bank needs to finish it off as they have got few chances, and JK Bank they need to come with all the guns blazing if they really want to win them. But this was a jewel in the crown, that is Ubaid, and what a spectacular move that was created within the penalty box area. Once you got the opportunity, Iqbal Sports got a goal here, and who would imagine that Iqbal Sports will score a goal here against JK Bank team, which is really one of the highly professional and very, very strong contenders of Khyber Milik Premier Football League 2021. In the com box in between Irshad and me, a veteran footballer and one of the superb and one of the fascinating footballer that this Jammu and Kashmir has ever produced. It is Inspector Ranjit Singh Ji, who is in between, and I'll be continuing my discussions with him. So Jammu and Kashmir Police Department is the only department who are hiring the youngsters, the talented players who are playing for them, not on the basis of contract but on the basis of permanent line. It starts from the SPO, that is I think the bottom line of police department, and from that the next step goes towards the constable. So Inspector Ranjit Singh also mentioned that police department can work hard and they can he's of the opinion he cannot go against the department, and he's having a huge respect to all the policies that DGP IGs of the Jammu and Kashmir they are framing out. He's really appreciating them, and because he's being the person himself in the department, so he's appreciating whatever is being done by the JK Police Department for the sports in particular. So there has been an absolute craze of football in the valley. That's what the Ranjit Paji has mentioned absolutely, that in Kashmir there is a culture of football, but in Jammu division to some extent because of shortage of ground, shortage of turfs, we have not that kind of culture. So to cultivate that kind of a culture, you need to have grounds, you need to have venues where you can put your efforts and you can build up your infrastructure. That's what is happening at the parade ground Jammu. Inshallah within no time you will also see a turf ground in Jammu as well. So I think Ranjit Sahab, that too will prove beneficial for the Jammu and Kashmir Union Territory if a turf ground will be come into the action at the Jammu division, because there is also a lot of talent. So to groom up the talent, ground is very, very important. जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ग्राउंड के लिए तो मेन देखो प्लेयर खेलेगा तभी जब वहाँ पे ग्राउंड होगी. तो थिंग इसकी वो अभी मेरे को लगता है कि वो उसका काम काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है. तो वो टर्फ भी मेरे को लगता है होपफुली विद इन 2 or 3 months तो वो टर्फ भी तैयार हो जाएगी.
Absolutely, that is going to be a good news for the people of Jammu and for the brothers and those who are really, desperate to play for the game of football. They must not be worried about their turf and to make all weather, all season possible turf. That is really a magnificent innovation, and that's really commendable job. JK Football Association Jammu and Kashmir is doing highly appreciable work, and they're all their members from top of the ladder. The president of Jammu and Kashmir Football Association, Mr. Zamir Saab, is doing a tremendous work. The all other members like Professor Bashir Saab, like executive, and all, and we have got Fayaz Saab. He is the president of District Football Association Srinagar. I mean, he is the man who is highly dedicated, very honest towards football and very honest towards the footballers. And yesterday he told me, I have a huge respect for all the players who have represented at the national level. So I think from Zamir Saab to down the line, I think each and every person who belongs to JKFA is doing really appreciable job. बिल्कुल सर, ये आप बात JKFA की कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. नो डाउट JKFA जो बड़ा अच्छा काम श्रीनगर में कर रहे हैं. वी हैव ए गुड टीम इन जम्मू आल्सो. जम्मू में भी फुटबॉल जो है मतलब वो जम्मू विंग करवा रहा है, वो भी काफ़ी वहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं. मतलब वो भी आप मेरी बात तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होती हैं वहाँ पे भी टूर्नामेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका टैलेंट तभी सामने आएगा जब आप टूर्नामेंट्स कंडक्ट करवाओगे, आपका यूथ इन्वॉल्व होगा. वी हैव जम्मू में हमारे पास एक अभी परेड था, तो पहले परेड में, तो अभी हमारे पास एक ग्राउंड हो रहा है वहाँ पे साइंस कॉलेज में. तो उस साइंस कॉलेज में वहाँ पे इतना प्रेशर है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ पे कोई 7-8 टीमें जो प्रैक्टिस करती है मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक. तो कहने का मतलब है कि एक ग्राउंड सफिशिएंट नहीं होती. मतलब आप टैलेंट ग्रूमिंग की बात करो आप, हाँ, या और मेंटेनेंस, उस ग्राउंड को मेंटेनेंस नहीं मिलती. उससे क्या होता है, ग्राउंड जो है उसका जो कंडीशन है वो एक तो वो इंजरी प्रोन हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रही है. तो सॉफ्ट सरफेस नहीं होती. इट इज़ नॉट मैटर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इट्स मैटर ऑफ अ डिवीजन ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स. बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं. वो प्रोविंस है तो मतलब वहाँ पे होना चाहिए. सेकेंडली सर एक बात मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे पुलिस की बात चल रही थी, तो मैं कह रहा हूँ मतलब जो जितना स्पोर्ट्स को इनकरेज पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है, मेरे को नहीं लगता कोई और डिपार्टमेंट करता है या करेगा. Sir, you have made a very good point here. Last time I was hired for around 6 matches by the Department of Police, and in fact that invitation came from IG Kashmir, and I was really happy to be the part of that particular event. That was not of football, but that was of cricket. Police department is not only reinforcing the talent in football, but in other sports activities. But we are bidding a goodbye, I think. And the discussion will be continued after the end of the first half, and we will be back in the second half. And हमारी जो बातचीत है, रंजीत साहब जो हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर रहे हैं, इंस्पेक्टर है, उम्मीद करते हैं कि डीएसपी के जो प्रमोशन के लिए इंतजार करे वो भी इनको मिल जाएगी. बहुत ही बेहतरीन काम किया है और बहुत बड़े सितारे रहे जम्मू कश्मीर की तरफ से. उनसे गुफ्तगू जारी रहेंगे. हम आपसे इजाज़त मांगेंगे 15 मिनट के लिए.